A very good question. Okay. Try to understand the question. Find curve not passing through the origin. Find curve not passing through the origin such that the length of normal at point P on the curve is equal to the radius vector. Now, try to understand. समझो मेरा डायग्राम है. Imagine this is the curve. Random curve. Okay, random curve. Okay, tangent normal. क्या बोला है at point P? Let's take the point as Px comma y. Now, what do you understand by radius vector? I'll just write it for you guys. Okay. What do you understand by radius vector? Distance of point P from the origin. तो अगर तुम देखोगे तो मेरा रेडियस वेक्टर होगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ओके, देखो ये इसके बारे में बात कर रहे हैं. ये इसके बारे में बात कर रहे हैं. ये रेडियस वेक्टर है ऑब्वियसली फ्रॉम द ओरिजिन. तो ये है ओ 0,0. नाउ व्हाट दे आर सेइंग इज कि length of the normal is equal to the radius vector. So I'll write according to the data, length of the normal is equal to the radius vector. Length of the normal is equal to the radius vector. Length of the normal is equal to radius vector. Now we all know that the formula for length of the normal is y under root of 1 plus dy by dx the whole square is equal to radius vector, which is under root of x square plus y square. I repeat again, y into under root of 1 plus dy by dx the whole square is equal to x square plus y square. कुछ नहीं करना है. When I square both sides, this will become y square plus y square dy by dx the whole square इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे वाई स्क्वायर और यहाँ पे वाई स्क्वायर निकल गया. जैसे वाई स्क्वायर निकल गया, आई विल बी लेफ्ट विथ वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ओके, वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. So I can write dy by dx is nothing but plus minus x by y. अब देखो ध्यान से, मुझे स्लोप मिल गया है dy by dx is equal to plus minus x by y. Now I have the luxury of solving it in two methods. अगर मैंने dy by dx को पॉजिटिव ले लिया, ठीक है, देखो अगर पहला पॉजिटिव लेंगे, अगर पॉजिटिव लेंगे तो इट विल बिकम इंटीग्रेशन y dy is equal to integration x dx. So this will become y square by 2 is equal to x square by 2 plus c, which is x square minus y square is equal to 2c.
विच इज़ नथिंग बट योर हाइपरबोला. ठीक है, ये 2c मतलब ये कैपिटल सी है. सो आई कैन राइट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल सी विच इज़ हाइपरबोला. अब ये तो आ गया हाइपरबोला. नाउ व्हाट विल वी डू इफ आई टेक नेगेटिव. सो दिस विल बिकम इंटीग्रेशन y dy is equal to minus integration x dx, which will become y square by 2 is equal to minus x square by 2 plus c, which will become x square plus y square is equal to 2c, which is nothing but capital C. And guys, this is nothing but a circle. So I've got two geometrical figures. मेरा एक पहला geometrical figure है, इसकी वजह से I got a hyperbola, and second से I got a circle. Anybody has any doubts here? Have you guys understood this? ये बहुत important concept हो गया. Length of the normal. We all know the formula for length of the normal is y under root of 1 plus dy by dx the whole square. Have you guys understood this? Now, going forward. Okay. Now, ये question है. Okay. Find f of x. Find f of x where f of x greater than equal to 0. देखो f of x greater than equal to 0 where f of x 0 भी है और f of 1 1 भी है, f of 0 0 भी है एंड f of 1 1 भी. ओके, ये क्वेश्चन है. क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहा है. सी दिस इज अ वेरी गुड डेटा कि मेरा जो f of x है मेरा f of x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब वो नेगेटिव तो नहीं है. 0 पे when x is equal to 0 y is also 0, when x is equal to 1 y is equal to 1 given. अब आता है मेरा थियोरेटिकल पार्ट. बाउंडिंग अ curvature trapezoid, okay, with base 0, x. अब जो भी मेरा ज्योमेट्रिकल फिगर है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विथ बेस 0, x सच दैट area bounded by y is equal to f of x coordinate axis and variable ordinate is directly proportional to f of x raised to n plus 1 where n belongs to natural number. ये क्वेश्चन है. अब क्वेश्चन किसी को नहीं समझा. ओके, किसी को नहीं समझेगा क्वेश्चन बिकॉज टू मच डेटा टू प्रोसेस. बट what catches my attention is y is equal to f of x coordinate axis and variable ordinate is directly proportional to f of x raised to n plus 1 where base is 0 to x. अब if I have to make a diagram, compulsory नहीं है, but if I have to make a diagram, I can make a diagram saying that base is 0 to x. ये है मेरा 0, ये है मेरा x. इसको हम ऐसे प्लॉट कर लेंगे कि समझो ये मेरा x यहाँ से. ओके, 0 to x ऐसे कर लेते हैं 0 to x and let's make a diagram in this pattern. ऐसे डायग्राम, ठीक है, कैसे भी बना दो तुम लोग. दिस इज द मोस्ट आई कैचिंग. ये मेरा डायग्राम है एफ ऑफ एक्स एंड दे हैव सेड दैट इट इज प्रोपोर्शनल टू समथिंग. अब क्या प्रोपोर्शनल टू समथिंग क्या दिया, देखो दे हैव सेड दैट 0 to x f of x is proportional to fx raised to n plus 1. ओके, यहाँ पे थोड़ा शिफ्ट कर लेंगे. dx आएगा गाइस. इंटीग्रेशन 0 to x f of x dx is proportional to this.
now since this is proportional, whenever we remove proportional, अच्छा f of x का value, I will see if f of x का value is given to me or not. Okay, y is equal to f of x दिया तो I can't do anything about it. Let's simplify this. तो ये हो जाएगा 0 to x f of x dx is equal to k f of x raised to n plus 1. When integration goes from one side to another, it becomes differentiation. यहाँ पे directly I can use Newton Leibniz if you want, but f of x को यहाँ पे लेके जाते हैं, so this will become 0 to x दिया है मुझे. When I go on the left hand side, this को differentiation हो जाएगा. So when integration goes from one side to another, becomes differentiation. So this will become, इसका derivative लेंगे तो it will become k n plus 1 into f of x the whole raised to n. This is f of x is equal to, okay, n into x raised to n minus 1 और ये हो जाएगा into f dash x. Now this is what I have got. f of x भी दिया है, f dash x भी दिया है, everything is given to me. f of x raised to n था, that has become like this, ठीक है. Now what I'll do is I'll take all the like-minded terms on one side and non-terms on the other side. अब तुमको कैसे करना है देखो, ध्यान से देखो. This will become dx upon, बिकॉज दोनों साइड dx ही होगा, dx अपॉन k n प्लस 1, ओके, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन. अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो मेरे पास है f of x, दिस विल बिकम f dash x इंटू f of x रेज टू n माइनस 1, ठीक है, f of x रेज टू n माइनस 1. अब मुझे पता है, इसमें यहाँ पर dx ले लेंगे. अब मुझे पता है कि f of x का डेरिवेटिव इज f dash x. तो अगर मैंने इसको t ले लिया, लेट f of x इज इक्वल टू t, सो f dash x dx विल बिकम dt. और जैसे f dash x dx dt हो गया, you can solve this here. This will become, इसको लेफ्ट हैंड साइड तो ऐसे रखेंगे, dx अपॉन के एन प्लस 1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टी रेज टू एन माइनस 1 डी टी. ओके, टी रेज टू एन माइनस 1 डी टी. एंड नाउ इफ आई इंटीग्रेट, दिस विल बिकम एक्स अपॉन के एन प्लस 1 इज इक्वल टू टी रेज टू एन अपॉन एन प्लस से, ठीक है, टी रेज टू एन अपॉन एन प्लस से. This is the data that is given to me. Next, they have said f of 0 is equal to 0. t का वैल्यू डाल देंगे, so x will become k n plus 1 is equal to, t is nothing but f of x, so f of x raised to n upon n plus c. And now they have written that f of 0 is equal to 0. Since f of 0 is equal to 0, I will put x का वैल्यू as 0. जैसे ही x का वैल्यू 0 हो गया तो लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगा. f of 0 is also 0, this will also become 0. Therefore, I will say that c is equal to 0. And जैसे ही बताया है कि c is equal to 0, c is equal to 0 हो गया, इसके बाद I will write मेरा आंसर तो क्या हो जाएगा. I'll continue on this next page. हो गया, ठीक है. So, थोड़ा ठीक है. So I will write x upon k n plus 1 is equal to f of x raised to n upon n. This is what I have got. Now इसके बाद देखो क्या बोला, f of 1 is equal to 1 दिया. अगर f of 1 दिया है तो x का वैल्यू भी 1 है, इसका वैल्यू 1 है, तो आई विल राइट कि यहाँ पे f of 1 is equal to 1. So 1 upon k n plus 1 is equal to 1 upon n. Therefore, if I substitute the value, k will become n upon n plus 1. Okay, you can leave it here, you can solve it. इसके बाद k का वैल्यू मिल गया, एंड लास्ट में एक्चुअली इसका वैल्यू ले लो, और इजी कर लेते. k n plus 1 का वैल्यू आ जाएगा, तो 1 upon k n plus 1 का वैल्यू इज 1 upon n. तो इसके जगह इफ आई सब्स्टिट्यूट ना, तो इसके जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे, देयरफॉर x, ठीक है, इसका वैल्यू है इज इक्वल टू 1 अपॉन n. तो x अपॉन n इज इक्वल टू f ऑफ x रेज टू n अपॉन n. ये निकला n, ये निकला n.
Therefore x is equal to f of x raised to n. Therefore f of x will become x raised to 1 by n. This is the answer that we are looking for. Okay, this is the curve where it is f of x is equal to x raised to 1 by n. Have you guys understood this? हमने सिर्फ बेसिक इंटीग्रेशन किया है, वो भी टाइप 1 सब्स्टिट्यूशन, where this is the substitution part of the sum. Have you guys understood this? Anybody has any doubts here? Now, if I start with type 2, ठीक है, type 2. Reducible to variable separable. Reducible to variable separable. Okay. Now, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं. Say for example, the question is dy by dx is equal to x plus y plus 4 the whole square. They have given me an entire cluster. कुछ नहीं करना है. I will take x plus y plus 4 as t ले लो. So 1 plus dy by dx is equal to dt by dx. Therefore dy by dx is equal to dt by dx minus 1. So this will become, if I substitute, dt by dx minus 1 is equal to, this will become t square. Therefore dt by dx is equal to t square plus 1. Okay, t square plus 1. Now I can do it at t square upon t square plus 1 is equal to dx. When I integrate dt upon t square plus 1 is equal to integration dx. ठीक है. Now this will become tan inverse t is equal to x plus c. t का value is nothing but x plus y plus 4 is equal to x plus. Have you guys understood this? वेरिएबल सेपरेबल, कुछ नहीं करना है, जो भी ब्रैकेट में दिया था उसको हम लोगों ने टी ले लिया और हमने इसको सॉल्व कर दिया. बहुत ईजी क्वेश्चन है, जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सम. मैं इसको सेपरेट नहीं कर सकता, बहुत ही खिचड़ी बन जाएगा. तो आई हैव टेकन द एंटायर ब्रैकेट एज टी, एंड सिंस यू टेक द एंटायर ब्रैकेट एज टी, all you have to do is just substitute the value, differentiate it, and you'll get the answer. Has everybody understood this? But ऐसे ही दिखने वाला अगर हमने टाइप 3 ले लिया, ऐसे ही दिखने वाला अगर टाइप 3 ले लिया, ठीक है, टाइप 3 ले लिया, से फॉर एग्जांपल dy by dx is equal to a1x plus b1y plus c1 upon a2x plus b2y plus c2. अब सबसे पहला पार्ट, when a1 upon a2 is equal to b1 upon b2, सबसे इजी पार्ट है. when a1 upon a2 is equal to b1 upon b2. इसका एग्जाम्पल लेते हैं. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. dy by dx is equal to x minus y plus 3 upon 2x minus 2y plus 5. ठीक है, एवरीवन प्लीज पे अटेंशन. a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 करेंगे. कैसे करेंगे देखो, मेरे को चेक करना है अगर मेरा रेशियो सेम ही है. a1 अपॉन a2 इज हाफ, b1 अपॉन b2 इज ऑल्सो हाफ, बराबर है. थोड़ा इसको अरेंज कर लेते हैं. अब देखो इसका अरेंजमेंट का मतलब देखो क्या होता है. x माइनस वाई प्लस 3, 2x माइनस 2y प्लस 6 माइनस 1. तो
dy by dx is equal to x minus y plus 3 upon 2 x minus y plus 3 minus 1. I will take let x minus y plus 3 is equal to t. 1 minus dy by dx is equal to dt by dx is equal to dt by dx. ठीक है, 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स. इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे मैंने 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा. सो आई विल गेट दैट डी वाई बाई डी एक्स इज नथिंग बट 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स. ये देखो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स. इफ आई सब्स्टिट्यूट हियर तो देखो क्या हो जाएगा, 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, आई हैव टेकन एक्स माइनस वाई प्लस 3 as t, so it will come t upon 2t minus 1 बराबर, t upon 2t minus 1. अगर मैंने इसको अरेंज कर दिया तो आई गेट dt by dx is equal to 1 minus t upon 2t minus 1. Therefore dt by dx will become 2t minus 1 minus t upon 2t minus 1. Therefore dt by dx will become t minus 1 upon 2t minus 1. Okay, now I can separate it, I can solve it. कैसे करना है वैसे कर सकते हैं, सेपरेट करके करोगे और इजी हो जाएगा, डायरेक्ट करना है और इजी चलेगा, वॉट एवर इज कम्फर्टेबल. इफ आई ट्राई टू मेक इट, देखो ऐसा डी टी बाई डी एक्स, देखो मैं क्या करने वाला हूँ, इसको मैंने हाफ ले लिया और इसको ले लिया 2t माइनस 2 अपॉन 2t माइनस 1, इसको एक साथ कर लिया. ओके, सो दिस विल बिकम डी टी बाई डी एक्स, हमने हाफ ले लिया बाहर ब्रैकेट में, एंड आई एम गोइंग टू राइट इट एज 2t माइनस 1 अपॉन 2t माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 2t माइनस 1. अब इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट से पहले निकल जाएगा. सो दिस विल बिकम dt by dx is equal to half 1 minus 1 upon 2t minus 1. okay, so t minus 1 और 2t minus 1 इसको ऐसे कर दिया. जब हम इंटीग्रेट करेंगे अभी, सो एक्चुअली इंटीग्रेट करने से पहले सिंप्लीफाई नहीं करना चाहिए था. एक काम करो, छोड़ो इसको, ऐसे मत करो. आई वाज ट्राइंग टू मेक इट ईजी बट ये और थोड़ा मेसी हो जाएगा. सो देखो क्या हो जाएगा, this will become 2t minus 1 upon t minus 1. इसको कर लेंगे dt and this will become integration dx. हाँ, so what I can do is इसको सेपरेट कर सकते हैं. अब देखो t minus 1 है तो इसको ऐसा लेकर दो. what I'll do is 2t minus 2, ओके मेरे को माइनस 1 चाहिए, प्लस 3, सॉरी मुझे -2 चाहिए, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल डू -2 प्लस 1 अपॉन t माइनस 1 dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx. सो अगर मैंने 2t माइनस 2 अपॉन t माइनस 1 dt प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन t माइनस 1 dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx, 2 बाहर ले लिया तो दिस विल बिकम t माइनस 1 अपॉन t माइनस 1 d, सॉरी dx की जगह पर dt है, dt प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन t माइनस 1 dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx. सो 2 इंटीग्रेशन 1 dt प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन t माइनस 1 dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx. So this will become 2t plus ln mod of t minus 1 is equal to x plus c. And last step में I have t का value. If I do this, यहाँ पे क्या t का value है, यहाँ पे t का value is x minus y plus 3. So 2 bracket x minus y plus 3 plus ln x minus y plus 3 minus 1 is plus 2 is equal to x plus c. इसको 2x minus x कर दो, simplify करो and you'll get the answer. Have you guys understood this?
But what will happen if second part, a1 upon a2 not equal to b1 upon b2. ठीक है, so you use homogeneous differential equation, and homogeneous differential equation का सबसे best format is you have to use y is equal to vx. Let's take a simple question. Say for example, अगर मुझे ऐसा दिया है कि dy by dx is equal to 2x plus 3y upon 3x plus 7y. Okay, 2 upon 3, 7 upon 3 upon 7, कुछ भी सेम नहीं आ रहा है. सेकेंड थिंग व्हाट आई कैन डू इज, इफ आई टेक इजी वाले लेते हैं, अगर समझो मैंने ऐसे भी ले लिया x प्लस वाई अपॉन 2x प्लस 3y प्लस 4. अगेन इसका रेशियो हाफ है, इसका रेशियो 1/3 है, दे आर नॉट इक्वल. व्हाट यू आर सपोज टू डू, टेक y इज इक्वल टू vx. चलो 4 भी निकाल रहे हैं, रैंडम क्वेश्चन वी हैव टेकन. अब क्या करेंगे, आई नो दैट a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. रेशियो सेम नहीं है. आई यूज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन? आई हैव टू टेक y इज इक्वल टू वी एक्स. जैसे मैंने y इज इक्वल टू वी एक्स ले लिया और मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो देखो इसका y इज इक्वल टू वी एक्स ले लिया. जैसे मैंने y इज इक्वल टू वी एक्स ले लिया, आई गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स. मैंने u इंटू वी किया है लेफ्ट हैंड साइड में. सो सी हाउ माई क्वेश्चन विल बिकम, dy by dx will become v plus x dv by dx, x plus vx upon 2x plus 3vx. So this will become v plus x dv by dx is equal to, मैंने x कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा 1 plus v. मैंने नीचे से भी x प्लस कॉमन ले लिया तो हो जाएगा 2 plus 3v. ये निकला x, ये निकला x, ये निकला x, ये निकला x. ओके, नाउ आई विल राइट x dv by dx is equal to 1 plus v upon 2 plus 3v minus v. So x dv by dx will become 1 plus v minus 2v minus 3v square upon 2 plus 3v. So this will become x dv by dx. This will become 1 minus v minus 3v square upon 2 plus 3. And I will take all the v and dv terms on one side. तो देखो मैं क्या करने वाला हूँ, I will write 2 plus 3v and I will write it as 3v square plus v minus 1 integration dv is equal to minus integration dx upon x. अब I will see if I can split this one. If I can split this, I can do it by partial fraction. Okay, 3v, तो I need minus 3 but plus, तो I can do this as, अगर मैंने ट्राई किया 2 plus 3v, and you can do लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक. लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक में भी कर सकते हैं, तो लोग पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हो. सो आई कैन राइट एज 3v स्क्वायर प्लस माइनस 3 चाहिए तो नहीं होएगा, ये स्प्लिट नहीं होएगा. It is very difficult to split this, and since it can be split, so I'll have to do this by integration linear upon quadratic. तो मुझे ये तो पता है कि linear upon quadratic, the method for linear upon quadratic is a into derivative of denominator plus b. ठीक है, you guys will solve it, and before the end of the lecture we will be solving this entire sum. Okay, so you guys will solve it and उसके बाद we'll continue with this sum. Right hand side का आंसर मुझे पता है कि it is going to be minus ln x plus c. Have you guys understood this? So this is variable separation method. Sorry, this is when they are not equal, we do by homogeneous differential equation. अब आता है सबसे important part, that is type 4. सबसे important part. So everyone will just pay attention here. ये बहुत important है. इसका नाम है polar substitution.
इसको हम बोलते हैं पोलार सब्स्टिट्यूशन एंड पोलार सब्स्टिट्यूशन विल रिमाइंड अस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स कि हमने ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ऐसे ही मेथड से किया था। क्या करेंगे देखो, इफ x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta, okay, then it is polar substitution for, then it is polar substitution for x square plus y square is equal to r square। ठीक है, देखो ध्यान से, कॉम्प्लेक्स नंबर्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा, कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करो। तो x विल बिकम r cos थीटा, r sin थीटा, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, मैंने r स्क्वायर कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में रहेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। सो दिस सेटिस्फाइड, और ये है सर्कल्स का। ठीक है, इसको अगर मैंने पार्शियल डेरिवेटिव किया तो देखो क्या हो जाएगा, इसको डेरिवेट करते चलो, 2dx 2x dx plus 2y dy is equal to 2r dr। ओके, 2r dr। देखो ध्यान से क्या किया है, कुछ नहीं किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर का डिफरेंशिएट किया। देखो व्हाट आर वी डूइंग, पे अटेंशन, 2x dx प्लस 2y dy इज इक्वल टू 2r dr किया। सबसे पहले 2 निकल जाएगा, चलो 2 निकाल देते हैं। ठीक है, सो सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन, सो दिस विल बिकम x dx प्लस y dy इज इक्वल टू r dr। नाउ मुझे पता है कि x dx प्लस y dy इज इक्वल टू r dr। ओके, x dx प्लस y dy इज इक्वल टू r dr। ऑल्सो आई नो दैट tan थीटा का वैल्यू मेरे पास था। ओके, tan थीटा इज इक्वल टू y by x, tan theta is equal to y by x। How? Sin upon cos। Okay, anything else? Tan theta is equal to y upon x। The same concept was used in complex numbers when you find the amplitude or the argument। Theta is equal to tan inverse of y by x। Theta is equal to tan inverse of y by x। अगर याद रहेगा वेक्टर्स में जब प्रोजेक्शन निकालते हैं, if this is the angle, this is your theta, if this theta is what, tan inverse of, this is your y coordinate, this is your x coordinate, so what is tan theta, it is y upon x। so what is theta, tan inverse of y by x। simple, it comes from vectors जो हमने वेक्टर्स में किया था। so everything is connected, तो theta is equal to tan inverse of y by x। चलो यहाँ से ले लेते हैं, theta is equal to tan theta sin theta upon cos theta is equal to y by x। now अगर tan theta y by x है, ओके, इफ tan थीटा इज y by x, अब यहाँ पे देखो क्या दिया, r dr दिया, r dr इज गिवन टू यू, आई डोंट नीड r, व्हाट कैन बी सब्स्टिट्यूटेड और व्हाट कैन बी चेंज्ड, मुझे r नहीं चाहिए। sin थीटा अपॉन y cos थीटा अपॉन y, r is what, cos theta upon x, x upon cos theta, r is x upon cos theta की y upon sin theta, दोनों। तो क्या लिखो फिर, एंड व्हाट इज dr, बोलो, इजी है। we can write r as root of x square plus y square। okay, ओके, ठीक है। अच्छा चलो यहाँ पे फोकस करेंगे, एवरीवन जस्ट फोकस यार, यहाँ तक कि हमने लिखा था, एवरीवन जस्ट फोकस यार। ओके, देखो ध्यान से देखो, कैन यू गाइज टेल मी व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan थीटा, sec स्क्वायर थीटा। देखो ध्यान से देखो, sec स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u
डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v square. Did you guys understand this? Anybody has any doubts here? अभी r का वैल्यू you can substitute any of the r का वैल्यू. So if I have to solve this further, ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा. If I substitute this here, अगर यहाँ पे substitute कर दिया, so my formula becomes, देखो ध्यान से देखो, x dy minus y dx is equal to x square sec square theta dt. x square sec square theta d theta. कुछ नहीं किया, ये मिला. आई जस्ट इंट्रोड्यूस्ड यू फर्स्ट ईयर, ठीक है. बट इसके बाद मैंने tan थीटा निकाला. जैसे tan थीटा निकाला उसको डेरिवेट किया, आई गॉट दिस वैल्यू. अब नाउ समवन विल टेल मी, अरे r का वैल्यू तो है अपने पास, r का वैल्यू इज नथिंग बट x अपॉन कॉस थीटा. वो भी चलेगा, x कॉस थीटा का भी वैल्यू है मेरे पास. अब आई हैव गॉट समथिंग लाइक दिस कि sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. और इसको अगर हम थोड़ा डेकोरेटेड फॉर्म में लिखेंगे, और x dy माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये देखो ये है एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा. x के जगह हम कुछ भी डाल सकते हैं. x के जगह आई कैन पुट एनीथिंग. अगर तुम ध्यान से देखोगे तो x अपॉन कॉस थीटा का वैल्यू है मेरे पास. व्हाट इज x अपॉन कॉस थीटा? इट इज x स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा. यस और नो? सी दिस, इफ x अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू r, तो कैन आई सी दैट x सेक थीटा इज इक्वल टू r, and therefore x square sec square theta is equal to r square. Has everybody understood this? So in place of that I can write also as r square d theta. This is your first introduction to polar substitution. कुछ नहीं किया है, y upon x को डिवाइड किया है, डिफ्रेंशिएट किया है, and I have got two formulas. The first formula I have got is, देखो ध्यान से देखो, x dy माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर डी थीटा. उसको सिंप्लीफाई करके आई कैन राइट x dy माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू आर स्क्वायर डी थीटा. x dy माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू आर स्क्वायर डी थीटा. हैज एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? हाउ वी गॉट दिस? अब ये तो मैंने x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा ले लिया. व्हाट विल हैपन इफ, सेकेंड पार्ट, x इज इक्वल टू r sec theta, y is equal to r tan theta. Okay, x is equal to r sec theta, y is equal to r tan theta. How do you think should we proceed with this? Just giving a hint. सबसे पहले हमने क्या किया था? हमने y upon x निकाला. If I do y upon x here, say for example if I do y upon x and I want you guys to try this same pattern, I want you guys to try it. अगर मैंने y upon x लिया तो I will get y upon x tan theta upon sec theta. Tan theta upon sec theta will give rise to sin theta. So in the same pattern, if you can try, I want you guys to try this. इसका आंसर and obviously at the end of the lecture I'll be using कि इसका polar substitution of किसका polar substitution है. बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर जब लिया था तो वी प्रोसीडेड विद लाइक दिस. सी देखो, बिकॉज ये एक्स स्क्वायर प्लस ये सर्कल है. सर्कल मतलब आई हैव टेकन दिस सब्स्टिट्यूशन एंड दिस सर्कल जब भी आएगा तो मैं ये सोचूंगा कि एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू आर स्क्वायर डी थीटा, या तो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर डी थीटा. ये पोलर सब्स्टिट्यूशन ऑफ सर्कल है. अगर मैंने ये लिया है तो ये पोलर सब्स्टिट्यूशन किसका है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट. हैज एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस? अब तुमको ये भी सोचना है कि कौन से ज्योमेट्रिकल फिगर में सब्स्टिट्यूशन इज आर सेक थीटा एंड आर टैन थीटा. देखो यहाँ पे मुझे पता है कि वी टेक ए कॉस थीटा ए साइन थीटा फॉर सर्कल. यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, सेक और टैन कब आता है वो इम्पोर्टेंट है. कौन से ज्योमेट्रिकल फिगर में हमारा सब्स्टिट्यूशन सेक और टैन था वो इम्पोर्टेंट है. So you have to think on those lines too.
Okay, now obviously that this I want you guys to try it right now, only we'll be trying it. So let's take a question. Say for example, x dx plus y dy is equal to x bracket x dy minus y dx. ओके, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स. अब देखो मैं क्या करूँगा, ये देखो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई कुछ तो दिया है कि एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई ब्ला 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 इज गिवन टू यू. अब मैं क्या करूँगा, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इज गिवन, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इज गिवन टू यू एंड एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स. अब देखो यार, ये देखो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स है मेरे पास रेडी, ताज़ा ताज़ा. एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज गिवन टू मी. कुछ नहीं करना है मुझे, मुझे पता है कि मेरा सब्स्टिट्यूशन क्या है. और देखो कभी भी सब्स्टिट्यूशन में कंफ्यूजन रहेगा, जस्ट सब्स्टिट्यूट एवरीथिंग. आर साइन लो, आर कॉस लो, एक ग्रुप, सेक लो, टैन लो, चारों में से दो में हमेशा वर्क करेगा, 100% करेगा, 100%. सो व्हाट आई विल डू इज I will take x is equal to r cos theta. I'll take y is equal to r sin theta. Any doubts sir? I've taken x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta. अगर तुमको याद नहीं है तो, बट अगर तुमको याद है तो मुझे पता है कि x dx माइनस x dy माइनस y dx, x dy माइनस y dx is equal to something that is given to me. r dr is given to me. Okay. चलो ये नहीं याद रहेगा तो लेट्स सॉल्व इट लाइक दिस. अगर इफ आई प्रोसीड विद दिस कि x इज इक्वल टू r cos theta, y इज इक्वल टू r sin theta, दिस विल बिकम, इफ आई हैव टू सब्स्टिट्यूट, ये देखो यहाँ पे x dx प्लस y dy, x dx प्लस y dy. अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, इफ आई डिफरेंशिएट दिस, व्हाट विल आई गेट इफ आई डू सब्स्टिट्यूट हियर, x dx प्लस y dy क्या बन जाएगा? कैन एनीवन टेल मी दिस? व्हाट विल x dx प्लस y dy? अच्छा इसका फॉर्मूला है मेरे पास, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स. अच्छा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स भी नहीं है मेरे पास. चलो एक काम करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद दिस, फिर ना ख़त्म ही कर लेते हैं. ओके, इफ आई स्टार्ट विद दिस सम, ओके, अगर एक्स और वाई दिया है मुझे, हाउ कैन आई प्रोसीड विद दिस? सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ये सम में क्या किया था हमने? सबसे पहले ये सम में क्या किया था हमने? डिवाइड किया था वाई बाई एक्स को. चलो यहाँ पे भी डिवाइड कर लेते हैं. इफ आई डिवाइड तो y बाई एक्स विल बिकम व्हाट? tan अपॉन sec विच इज sin थीटा. एनीबॉडी हैज एनी डाउट्स? चलो sin थीटा कर लिया, इसके बाद क्या करेंगे? अगर sin थीटा कर लिया तो इसके बाद एक ही ऑप्शन बचेगा. क्या ऑप्शन बचेगा? u अपॉन v. इफ आई डू u अपॉन v, व्हाट विल दिस बिकम? x dy माइनस y dx अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा. यस, साइन थीटा डी थीटा. आप क्या करेंगे? कैन आई टेक एक्स स्क्वायर ऑन द राइट हैंड साइड? देखो ऐसे करेंगे, ये देखो ये आ गया था. साइन थीटा को डेरिवेट करेंगे. देखो साइन थीटा को डेरिवेट नहीं किया, सॉरी, कॉस थीटा, cos थीटा डी थीटा. अब cos थीटा तो है मेरे पास. व्हाट इज cos थीटा का वैल्यू गाइस? r अपॉन एक्स, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स. ये एक्स भी बाहर ले लिया. cos थीटा का वैल्यू देखो ना, है मेरे पास cos थीटा. अगर मैंने इसको 1 अपॉन cos लिया, दिस विल बिकम r अपॉन एक्स, बराबर ना, इनटू डी थीटा. एनीबॉडी हैज एनी डाउट्स हियर? ठीक है, कुछ कैंसिल हो रहा है. एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, कुछ कैंसिल हो रहा है, एक्स कैंसिल, बराबर ना. सो आई विल गेट एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू आर डी थीटा. ठीक है, डिड यू गाइस अंडरस्टैंड दिस? एनी डाउट्स हियर? अब मुझे पता है कि एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, देखो यहाँ पे एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू आर स्क्वायर डी थीटा.
यहाँ पे मिल गया था मुझे, एंड दिस इज द पोलर सब्स्टिट्यूशन फॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, बराबर। अब इफ आई सॉल्व दिस तो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स विल बिकम, यहाँ पे सो अगर मैंने इसको सॉल्व किया, देखो सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस, एक काम करते हैं ना, अगर मैंने ऐड किया तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो आर स्क्वायर सेक्स स्क्वायर थीटा एंड वाई स्क्वायर विल बिकम आर स्क्वायर tan square theta. Guys, do I need to add or subtract? Exactly. So x square minus y square will become r square. And अगर मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, सबसे पहले तुमको चलो ये एक इजी मेथड से कर लेते हैं, ये साइड में रखो 2 मिनट के लिए, ऐसे करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, दिख के मालूम पड़ रहा है कि ये हाइपरबोला है, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, 2x dx minus 2y dy is equal to 2r dr. Therefore, x dx minus y dy is equal to r dr. खत्म, और इजी कर दिया, दूसरे मेथड से कर लिया। सो व्हाट इज x dx minus y dy? इट इज r dr. किसका पोलर सब्स्टिट्यूशन है? ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। हैज एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? अब देखो मेरे पास है एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई इज आर डी आर एंड एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, दे हैव गिवन दी एक्स डी एक्स, अच्छा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, तो एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू आर डी आर। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन दैट वी वर डूइंग, ओके, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इज नथिंग बट एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई इज गिवन टू मी। यहाँ पे क्वेश्चन में है क्या, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स है ना, एक्स डी एक्स, एक मिनट, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, ठीक है, इसमें भी कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। तो इफ आई टेक एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, देखो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, एज यू गाइस सेड कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिया है, मुझे पता है कि सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज 1, मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया, आई गॉट अ पैराबोला, आई गॉट अ हाइपरबोला। अगर मैंने इसको डिफरेंशिएशन किया तो 2x dx minus 2y dy is equal to 2r dr. So x dy minus y dx becomes r dr. In this question, they have given x dx plus y dy is equal to x into x dy minus y dx. That is given to me. अब अगर मैंने x is equal to r cos theta डाला, x is equal to r cos theta डाला, देखो ध्यान से, अगर मैंने x is equal to r cos theta डाला, what will this become if I solve this? अगर मैंने इसको x is equal to r cos theta डाला, अगर मैंने स्क्वायर एंड ऐड कर दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बिकम आर स्क्वायर। सो ये क्या हो जाएगा, 2x dx प्लस 2y dy इज इक्वल टू 2r dr. देयरफॉर दिस विल बिकम x dx प्लस y dy इज इक्वल टू r dr. डू आई हैव द लेफ्ट हैंड साइड? आई हैव द लेफ्ट हैंड साइड. व्हाट इज द लेफ्ट हैंड साइड? x dx plus y dy. Guys, what is the value of x dx plus y dy? r dr. अब राइट हैंड साइड देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x गाइस? x का वैल्यू क्या बताओ? r, वेरी गुड। अब अंदर है ना, अंदर देखो उन्होंने क्या किया, अंदर देखिए r cos थीटा, अंदर देखो x dy माइनस y dx दिया। अब व्हाट इज x dy माइनस y dx? इफ दे टेल मी x dy माइनस y dx, अब x dx माइनस y dy तो है, व्हाट कैन आई राइट फॉर x dy minus y dx? Do I get x dy minus y dx if I have to solve x dy minus y dx? x dy minus y dx दिख रहा है, x dy minus y dx, देखो ये देखो यहाँ पे भी दिया x dy minus y dx. What is x dy minus y dx? r square d theta. देखो ना ये राइट है, x dy minus y dx. What will this become? x dy minus y dx will become r square d theta. Sure. ये नहीं यूज करेंगे क्या? ये यूज करना है, ये यूज करना है, r square d theta यूज कर लेंगे। चलो ले लेता हूँ, लेट्स सॉल्व दिस। ये हो गया। कुछ कट हो रहा है क्या फ्रेंड्स? कट हो रहा है क्या? चलो यार निकाल दिया। Now if I solve this, this will become dr upon r square is equal to d theta upon sec theta. अब d theta upon sec theta दिया है, ठीक है। अगर d theta upon sec theta से हमने सॉल्व किया
So integration dr upon r square is equal to integration cos theta आएगा ना d theta. So minus 1 by r is equal to sin theta plus c. ठीक है, sin theta plus c. अब r का वैल्यू मेरे पास है, sin theta का भी वैल्यू मेरे पास है. ठीक है, देखो sin theta का वैल्यू देखो, I'll just write it. See, r will become under root of x square plus y square, and अगर guys sin theta will become y upon r, which is y upon root of x square plus y square. So my final answer will become minus 1 upon root of x square plus y square is equal to y upon root of x square plus y square plus c. ठीक है, this is the answer. So you have to understand कि ये क्या होगा और ये क्या होगा. The pattern will never change. The pattern घुमा फिरा के will be the same. You just need to understand कि y dx x dy क्या बनेगा. How do I proceed? देखो मैंने क्या बोला, या तो साइन कॉस आएगा या तो सेक आएगा. तुमको चेक करने का कोसेक सेक भी कर लो. 6 में से एनी 2 पैटर्न विल ऑलवेज वर्क. उसको नैरो डाउन करके 4 भी हो जाएगा, बट 6 में से एनी 2 पैटर्न विल वर्क. लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन. ओके, x dx minus y dy upon x dy minus y dx is equal to under root of 1 plus x square minus y square upon x square minus y square. अब यार बहुत बड़ा हिंट, लेफ्ट हैंड साइड नहीं राइट हैंड साइड. एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिए. एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मतलब ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर will always be sec theta and tan theta. Have you guys understood this? Plus x dy minus y dx. क्वेश्चन में देखो x dy minus y dx भी है, और क्वेश्चन में x dx minus y dy, x dy minus y dx भी दिया है, एंड यहाँ पे क्या दिया है, x dx minus y dy. तो x dx minus y dy is also given to you, x dy minus y dx is also given to you. तो लेफ्ट हैंड साइड दिया है, इसका r dr है. इसका आर स्क्वायर डी थीटा कैसा हो गया, सेक स्क्वायर डी थीटा, ये डी आर हो जाएगा. सॉरी यार, डी थीटा हो जाएगा. तो डी आर है, डी थीटा नहीं होएगा, इट्स डी आर. सॉरी गाइस. सो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट अ प्रॉब्लम. x dx, देखो ध्यान से देखो, x dx minus y dy, x dx minus y dy. I'll refer to this. If I have to solve x dx minus y dy, x dx minus y dy is r dr. तो सबसे पहले हम लोग r dr लिखेंगे. x dx minus y dy, I will write it as r dr. And x dy minus y dx, x dy minus y dx is r square dr. So I will write it as r square dr. This will become r square dr. यहाँ पे substitution is the major concern. X square minus y square is nothing but r square. X square minus y square is nothing but r square. I hope everyone knows that x square minus y square is equal to r square. So क्या लिखो यहाँ पे, 1 plus r square upon r square. ठीक है, सुनो 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 ध्यान से देखो, ये निकला r, ये निकला r. ओके, dr प्लीज कट मत करना. ठीक है. So for me, I am going to arrange it. तो dr रहेगा. If I solve this further, ठीक है, अब substitution लेना है क्या? ठीक है, इसको एक काम करते हैं, dr अपॉन, अब देखो हर जगह एक ही वेरिएबल है. So it is very important for me to understand this too. ये भी देखो, ये देखो r का वैल्यू भी है मेरे पास. r इज वॉट एवर वैल्यू यू गोइंग टू सब्स्टिट्यूट. r का वैल्यू हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है,
आई कांट जस्ट सब्स्टिट्यूट इन टर्म्स ऑफ आर. तो अगर यहाँ पे ये कैसा आया, आई जस्ट शो इट टू यू कि कैसा आया है. देखो ध्यान से, x इज इक्वल टू आर सेक थीटा, y इज इक्वल टू आर टैन थीटा. तो साइन थीटा will become y upon r. I hope everyone has understood this. So x sin theta will become y upon r. Okay. x is equal to r sec theta, y is equal to r tan theta. देखो यहाँ पे किया था हमने, x is equal to r sec theta, y is equal to r tan theta. So I have got this value, then sec theta upon tan theta. तुम लोग साइन निकालो, तुम लोग कॉस निकालो, तुम लोग कुछ भी कर लो, मेरे को आंसर आ जाएगा. ठीक है. अगर मैंने x इज इक्वल टू आर सेक थीटा, y इज इक्वल टू आर tan थीटा किया. अच्छा, सम पीपल डू इट लाइक दिस. I'll just show it to you. Okay. X is equal to r sec theta and y is equal to r tan theta. Okay. अगर मैंने इसको सब्स्टिट्यूट किया तो इसके जगह ना, अगर मैंने सब्स्टिट्यूट किया एक्स स्क्वायर इज आर स्क्वायर, एक मिनट. I think I've written the question wrong. 1 minute, I guess. 1 minute. Now if you take यहाँ पे, I eliminated that. So if I take y upon x, will become sin theta. So x dy minus y dx upon x square is equal to cos theta d theta. So x dy minus y dx is equal to x square cos theta d theta. By mistake I eliminated the, मैंने कैंसिल कर दिया था. यहाँ पे आएगा वो लिखना, वही सोच रहा था. सी एक्स का वैल्यू इज आर सेक थीटा, तो दिस विल बिकम आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा into cos theta d theta. Therefore x dy minus y dx is equal to, this will become r square cos theta d theta. देखो नहीं, r square sec theta d theta, and this is where the change comes. R square, this is r square sec theta d theta. x dy minus y dx, ये देखो x dy minus y dx is r square sec square theta. Now if you look at this question, ठीक है, x dy minus y dx, x dx minus y dy is this. X dx minus y dy is r square, r dr. So this will become r dr upon r square
sec theta d theta is equal to under root of 1 plus r square upon r square. So this will become dr upon r sec theta d theta is equal to under root of 1 plus r square upon r. ये निकला r, ये निकला r. So dr upon root of 1 plus r square is equal to sec theta d theta. And now if I integrate, this will become dr upon root of 1 plus r square is equal to integration d theta into sec theta. So this will become ln mod of under root of x square plus a square is x plus under root of x square plus a square is equal to ln mod of sec x minus tan x plus c. Okay, so I'll get sec theta minus tan theta plus c, and इसके बाद obviously you have to substitute r का value. So if you substitute r का value and theta का value, you'll get the answer. Okay, so sec theta, r is nothing but under root of x square plus y square, we know that, and sec theta का वैल्यू भी वही आ जाएगा. तो देखो यहाँ पे देख के मालूम पड़ रहा है कि r इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. देखो r इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. ओके, r स्क्वायर नहीं है, r इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. sec theta is nothing but x upon r, which is x upon under root of x square minus y square, and tan theta is nothing but y upon r, which is y upon under root of x square minus y square. Just substitute the values and you will get the answer. Okay, if you substitute the values, you will get the answer. Has everybody understood this? So this too, क्यों? It is under root of 1 upon x square plus a square. Under root of, this is not 1 upon x square plus a square, वो है 1/2 है, वो tan inverse हो जाएगा. But I understood this is ln mod of x plus under root of x square plus a square. So mod of ln आएगा. Okay, now just I'll give the shortcuts and then we'll wind up the lecture. Exact differential equation. It's very important for you to know these things. Exact differential equation. First, d of x square is equal to 2x dx. X square plus y square is equal to 2x dx plus 2y dy. Third, xy is equal to x dy plus y dx. Y by x is equal to x dy minus y dx upon x square. Log x is equal to 1 upon x dx. Sixth, root of x square plus y square is equal to 1 upon 2 root of x square plus y square into 2x dx plus 2y dy. ठीक है, which is nothing but x dx plus y dy upon root of x square plus y square. Basically nothing but r हो जाता है वो. ठीक है, यहाँ तक लिख के ले लेंगे and then we'll stop for the